पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हौसले बुलंद है। A city full of color, with cinema, clubs, and beach as part of its culture. No ethnic strife till the elections of Ayub Khan versus Fatma Jinnah, which was considered the start of a long battle. In 1958, the Sindhi language was banned in schools, thus depriving Urdu-speaking children from learning Sindhi. The second attempt was when it was decided to shift the capital from Karachi, and a new city called Islamabad was made. The only logic given by the establishment was that the capital should not be at the port side. Interestingly, we have port in Karachi and naval headquarters and a huge housing scheme in Islamabad. Within the next 20 years, from 1967 to 1987, there was a sudden influx of population pouring into Karachi without any planning. They started living and building kachi abadis in huge numbers. The bureaucrats started selling the vacant lands. All of a sudden, the smooth transport system, like the circular railway, was replaced by a disorganized system of minibuses. Today, there are several thousand such irregular shelter homes in which millions of people are living. Orangi town is the biggest kachi abadi in Asia. After 1987, Karachi never returned to normalcy. It plunged into political, ethnic, and sectarian strife. An estimated 30,000 people lost their lives over a period of 30 years. The city has some 20,000 madrasas with over 2 million students. Today, no one knows the exact population of Karachi because no census was conducted for almost 15 years. With large and irregular populations of Pakhtuns, Punjabis, Sindhis, Balochis, Biharis, and Urdu-speaking people all living here, it still remains unclear what percentage of each population live in the city. Karachi voted for Fatma Jinnah against General Ayub. Many Karachiites believe that they were punished because of their support and vote for Fatma Jinnah, which resulted in the first major ethnic clash between the Pakhtun and Urdu-speaking. The Mahajir bureaucrats who considered themselves as more educated started feeling that their share had been reduced and given to Punjabi and Pashto speaking. When martial law was imposed by General Zia-ul-Haq in 1977, sweets were distributed in urban Sindh, which resulted in negative feelings among the Sindhi population. It turned into a feeling of hatred when Bhutto was hanged. Sindhis gave credit to Bhutto for raising the Sindhi middle class and also gave strength to fight. The man responsible for the decision was the new military ruler of Pakistan, General Zia. We started off with an open hand. This is the example I keep on giving it. We started off with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan. But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually, to apply the squeeze where it is necessary. Mid-80s saw the emergence of real Mahajir politics, something which took the urban cities away from Jamaat and JUP. The slogans which gave edge to JI and JUP in Karachi and Hyderabad were taken away by the All-Pakistan Mahajir Students Federation, the APMS, in 1978. And later Mahajir Qawami Movement, MQM, in 1984.
मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन वडेरे जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। 3 years saw MQM emerge as the most powerful party of urban Sindh. Initially, they faced problems with IJT, and they were forced to leave the campuses. Late MQM chairman Azim Tariq once said, "When we were thrown out of the colleges and universities, we left with no other option but to go to localities and house to house. The support we got from the Muhajirs us, and we decided to turn APMSO into MQM. In 1987, local bodies elections surprised everyone." अपना नाम तैयार करो, बोरी हम तैयार करेंगे। From 1985, the city saw an emergence of many ethnic groups like Sindhi, Punjabi, and Pathan. This time, the two considered Muhajir as their main rivals. Many new religious but non-political groups also emerged. Muhajir Rabta Council, the MRC, is yet another such organization which Sindhis considered anti-Sindh. It is one of the most populous and most rapidly growing cities in the world. Because of its liveliness, it is locally known as the City of Lights and the Bride of the Cities. My journey begins. I knew it would be difficult to see the world through their eyes. I am standing on the famous Shah Faisal Road. Approximately 17 to 18 million people reside here. Any small political event claims 100 lives here. And in normal circumstances, people are used to seeing 15 to 20 people dead on a daily basis. It is widely claimed and blamed that political parties are responsible for these killings. MQM, ANP, and People's Party are mainly blamed for its killing citizens due to their political infight, as all of them are reported to have their militant wings. Businessmen are bound to pay extortion commonly known as patta to different groups, otherwise they are threatened and eventually killed. Talibans are also said to be very active in kidnappings, ransom, and killings. We will show you through interviews and footages why this city, which contributes 70% tax revenue to national exchequer, is suffering. हमें तो ये कहा जाता है कि हमने जख्मी किया है, आप उठाए नहीं जब तक ये मर ना जाए। ले लिया बुलंद कर इरादा, क्यों सोचता है प्यादा, कब तक रहेगा प्यादा। रिश्तों में जीना बेकार है, जिएगा वही तो मरने को तैयार है। एक सिलसिला जो चल रहा वो छोड़कर, एक कायदा जो चल रहा वो तोड़कर, लाखों करोड़ों में कोई ले। Right now I'm in Karachi Press Club and I'll be interviewing 4 main stakeholders of Karachi. इस टाइम जो कराची की सिचुएशन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और जो एलिमेंट्स पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उनका जो टारगेट होता है दैट इज़ कराची, क्योंकि कराची इज़ आन इकोनॉमिकल हब। तो वो चाहते हैं कि अगर इकॉनमी पाकिस्तान की जो है उसको हम वीक करेंगे तो हम सब कामयाब जाएंगे, इसलिए कराची में ज़्यादा टारगेट किया जाता है। लेकिन स्पेशली इन दिनों में जो है, खासतौर पर जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, तो गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए या उसका फेल्यूर शो करने के लिए कुछ ज़्यादा वो एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं। जब से आपकी गवर्नमेंट आई, आपने क्या दिया लोगों को? देखिए, अगर आप पॉलिटिकली पूछ रही हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि मुशर्रफ के टेन्योर में एक
जिस तरह मतलब ज़ाहिरी तौर पे उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट अभी भी हो रहा है। लेट्स सपोज आप देखें कि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो मुशर्रफ के दौर में स्टार्ट हुए, सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में स्टार्ट हुई, अकबर बुगटी को शहीद किया गया। उस वक्त मतलब ज़ाहिरी तौर पर चीज़ मुनासिब लग रही थी कि भाई जो कुछ हो रहा है इसके अभी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आ रहे। तो आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा किसी चीज़ में के कोई भी अगर कोई बीमारी होती है जब तक वो स्प्रेड नहीं करती तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आते। मैं समझूंगा कि मुशर्रफ की वो जो पॉलिसीज़ थी उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, इसलिए क्योंकि अगर आप 2008 से पहले का पाकिस्तान देख लें, मतलब मैं मुशर्रफ की टेन्योर से पहले के पाकिस्तान गया हुआ, उस वक्त आपको सुसाइड बॉम्बिंग मिलती नहीं थे, आपको यहाँ पे जो है पाकिस्तान की पोजीशन नॉर्मल थी, यहीं पे जो है ड्रोन अटैक्स नहीं थे, तो इस तरह के तालिबान फैक्टर का नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मुशर्रफ के टेन्योर में उसकी मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी या एक लॉन्ग विजन नहीं था उसकी ब्रॉड विजन ना होने की वजह से ये उस वक्त उसने वो चीज़ें जो की हैं अब उसको फेस पूरी करना है। कराची की सिचुएशन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कराची की जो सूरत हाल है, ये 4.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, लेकिन 4.5 साल के अंदर ज़रा बराबर इसमें कमी नहीं हुई, बल्कि इसमें कई गुना खराबी में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को अपनी कुर्सी आई है, न वोटर प्यारे हैं, न शहरी प्यारे हैं, न ताजर प्यारे हैं। जहाँ तक कहते हैं कि तालिबान का इसमें है हालात ख़राब होने में, आपको क्या लगता है कि ये सच है? भाई ये 4.5 साल से जो है हालात ख़राब हैं। इस हुकूमत से पहले भी हालात ख़राब थे, लेकिन इस हुकूमत आने के बाद उस वक्त तो तालिबान नहीं थे। ये तो अब ये है कि एक अपने आप को छुपाने के लिए एक नया इशू इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आइंदा वही माफिया होगा जो बताखोरी करता है, वही लोग होंगे जो नीचे नाम लिख देंगे तालिबान। कराची में टारगेट किलिंग का क्या हल है? देखिए कराची में यकीनन ये जिम्मेदारी जो रियासती इदारे हैं उनकी है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पुलिस है, रेंजर्स हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। और जिस दिन वो अपना काम बिल्कुल ठीक करेंगे, जिस तरह उन्होंने 2003 से 2008 तक काम किया, वही पुलिस थी, वही रेंजर्स थी, नो टारगेट किलिंग एग्जिस्ट। रहने दो यार, खैर ऐसे सही है। आपको लगता है कि ये टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाएगी फ्यूचर में? ये एक कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल ख़त्म होगी। कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की क्योंकि ये किलिंग्स हैं, इसमें पॉलिटिकल किलिंग्स जो है ना वो 10% है। बेसिकली जो किलिंग्स हैं वो स्ट्रीट क्राइम है, बैंक रॉबरी है, पर्सनल वेंडेटा है। इस शहर में कारोकारी भी है, इस शहर में वनी भी है, ट्राइबल वॉर्स हैं इस शहर के अंदर। जो रिलोकेशन हुई है वाना वज़ीरिस्तान से, उनकी दुश्मनी भी 1000 साल पहले की वहीं यहाँ ट्रांसफ़र हुई है। यहाँ पुलिस और ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, ये सारे माफियाज भी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तो 6 अफराद बैंक डकैती की रकम लूटने के बाद उसकी तकसीम पे भी कत्ल हुए। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की किलिंग्स हैं क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है, गैर मामूली शहर है। गैर मामूली शहर के ऊपर गैर मामूली इक़दाम किए नहीं गए, तो अब वो सारे जराइम एक जगह हो गए हैं, तो वो उसको टर्म एक हो गया टारगेट किलिंग। इसमें पर्सनल वेंडेटा भी शामिल है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे को किलिंग कर रहे हैं, लोगों में एक इश्तियाल भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये किलिंग कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर इदारे उसी तरह, वही पुलिस, वही रेंजर उसी तरह काम करे जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता 5 साल में। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? वी सपोर्ट इलेक्शन डेफिनेटली। तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाना चाहती हैं। वी लव टू हैव इलेक्शन इन आवर कंट्री, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल होना और पीस होना बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर इलेक्शन जब होते हैं ना पूरे मुल्क में होते हैं, तो हमारे पास बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा 2 सूबे वो, और अब सिंध में कराची स्पेशली, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे ही ठीक हो, हम समझते हैं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। आपको लगता है वोटिंग फेयर है यहाँ पे? देखिए वोटिंग आइडियल तो 100% कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की कंप्यूटराइज वोटिंग हम लोग मैनुअल वोटिंग पर है। लेकिन इस बार जो नादरा ने इंटैक्ट किया है वोटर को अपने सिस्टम के साथ, और जिस तरीके से वोटर एक दफ़ा जब वोट डालेगा और सिस्टम से उसका वोट आ जाएगा, वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं डाल सकता। पहले तो ये होता था कि लोगों का वोट किसी और जगह भी होता था और वो रहते कराची में थे, उनका वोट वहाँ भी डलता था और वो कराची में भी वोट डालते थे। लेकिन अब ये ज़रूर हुआ है कि एक शख्स एक ही जगह पे वोट डालेगा। अगर मैंने यहाँ वोट डाल दिया तो मेरा वोट एबटाबाद में कास्ट नहीं होगा। मेनली कहते हैं कि कराची जो है, ये जितना यहाँ पे क्राइम हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल एमक्यू है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये कहाँ लिखा आपने, कहाँ पढ़ा सुनने आपने, में आता है, किससे सुना आपने? हर किसी से सुनते हैं, नहीं, जो भी लोकल। Right now I'm going to Kurangi, which is heavily populated with Urdu speaking people, and I'm going to ask them few questions.
about Karachi. This is Korangi. There are several ethnic groups in Korangi, including Muhajirs, Sindhis, Punjabis, Kashmiris, Saraikis, Pakhtuns, Balochis, Memons, and Bengali. गरीब आवाम मर रही है, बिल्कुल देखा आप कितना चल रहा है सारा कुछ, सब परेशान है। आपको लगता है कि ये तालिबान का इसमें मीडिया बाबू हमारा उनको देखना चाहिए, हमारे क्यों क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये जो आज फ़ोन की सर्विस बंद हुई थी है, इससे हालात अच्छे हो सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जिनको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ा नहीं जाते, वो दहशतगर्द फिर भी वो करके चले जाते हैं, और क्या जो भी करना होता है उनको। मोबाइल फ़ोन से क्या रुक रहा है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि आवाम परेशान है नॉर्मली तौर पर। अब लोग बैलेंस नहीं चला पा रहे, कुछ बात नहीं कर पा रहा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, किसी की इमरजेंसी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी देखें सब चीज़। आपको क्या लगता है ये जो कराची के हालात ख़राब हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से इनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी वजह से ख़राब है? हाँ, ये तो देखो सभी हालात ऐसे हैं, सभी बेरोज़गारी, कोई कारोबार नहीं है, इतने परेशान है लोग, कारोबार नहीं है हमारा, तो ये हालात इतने ख़राब है, कहीं निकल नहीं सकते हम। आपको लगता है कि तालिबान की वजह से भी है इस तरह? अब यह हम क्या कह सकते हैं, तालिबान ही तो हुकूमत को चाहिए ना, मतलब ऐसा ना हो। ये जो आज सेल फ़ोन की सर्विस जो है सस्पेंड की हुई है, इससे आपको लगता है हालात ठीक हो सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, ये तो कुछ हो नहीं सकता, ये पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अगर पहले सही होता तो अब नहीं होगा। पार्टी की वजह से भी ख़राब है, और दूसरे जो है हम लोग यहाँ एजुकेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, किसी में हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता है, तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये सारे हालात हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, वो ये कि हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनको अपने लिए यूज़ करते हैं। जब अपने लिए यूज़ करेंगे तो लाजिम बात है, अब किसी से आप कोई मफाद का काम जिससे करवाएंगे तो वो दो काम अपने मफाद के लिए करेगा, तो इसी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। कौन सी पार्टी आपको लगता है इसके ज़्यादा मेन वो है, ये टारगेट किलिंग के पीछे? और ये टारगेट किलिंग के पीछे तो पार्टी का तो नहीं कह सकते, तो कोई पार्टी है कुछ है, हो सकता है कि हमारे जो दहशतगर्द हैं और दूसरे हैं तालिबान को कह लें या और भी दूसरे हैं उनको कह लें, तो वो सब लोग कर रहे हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं। तो ये आज जो सेल फोन की सर्विस जो इन्होंने सस्पेंड की हुई है, ये गलत है, ये नाअहली है, ये नाअहली है। We are headed to Kati Bahari. It is divided into two sides. One side is Pakhtun and the other is Muhajirs. Right now I'm in Kati Pahari area, which is mainly populated with Pakhtuns. It's a terribly dangerous area. Right now I'm in Kati Pahari area and I'll be interviewing few people. आपको क्या लगता है कि ये कराची की जो सिचुएशन है अभी, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का जी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो नहीं है भाई, हालात तो यही लोग ख़राब करते हैं। जो आदमी यहाँ पर रह रहे, सब हम लोग कटी पार्टी में रह रहे हैं, ये सब जब इलाका यहीं पर है, हालात ख़राब करने वाले चंद लोग हैं, सारे नहीं हैं। कौन लोग यहाँ पर मीडिया में से आप लोग तो खुश थे ना, आप लोग को मीडिया वालों को भी पता है, मगर आपको सियासतदान नहीं बता रहे, एजेंसी नहीं बता रहे, कौन है वो सभी जानते हैं। आपको लगता है कि इसमें तालिबान का कोई हाथ है? नहीं, तालिबान का नहीं है, मैं सारा मुत्तहिदा वाले हैं, और कौन है, ये सारा मुत्तहिदा वाला यहीं पर काम कर रहे हैं। तो ये जो इधर मामा पाड़ी है, हाँ शहबाज है, दानिश है, ये सब लोग यहीं पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, और कौन है। ये जो कराची की सिचुएशन है इस टाइम पे, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से है? ये असल में पॉलिटिकल पार्टी की वजह से भी है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जो यहाँ पर हालात जानबूझकर ख़राब करा है। जब भी इन पॉलिटिकल पार्टियों का गवर्नमेंट से कोई डिमांड होता है तो शहर की हालात ख़राब करते हैं और अपनी डिमांड पूरा कर लेते हैं।
कराची में आपको तो पता है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इस वक्त 2-3 चल रही है, पीपल्स पार्टी, ANP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो जिसकी डिमांड अपना डिमांड रखता है, जब कोई डिमांड गवर्नमेंट पूरा नहीं करते तो वो हालात ख़राब कर देते हैं। टारगेट किलिंग शुरू होता है, कभी मजहबी आड़ में, कभी सियासी आड़ में, कभी किसी में कुछ ना कुछ बहाना तलाश करते हैं और 8, 9, 10 तक एवरेज पहुंचा देते हैं डेली। आपको लगता है कि इसमें तालिबान की कोई इन्वॉल्वमेंट है? तालिबान बेचारे तो देखो वो तो इधर इतना मजबूत नहीं है जितना तालिबान के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका इतना इशू मेरे ख्याल में तो नहीं है। जब इस इलाके में गैंग वॉर होती है तो यहाँ का क्या माहौल हो जाता है? यहाँ का माहौल ये होता है कि दोनों तरफ से फायरिंग होती है और आवाम जो है पिसते रहते हैं, भूख से मरते रहते हैं। बड़े को इतने बच्चे अभी ये दहशतगर्द है, ये तालिबान है। यहाँ बच्चियाँ स्कूल जाती हैं? छोटी जाती है, वो 9 को एरिया है सामने की साइड। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है सारे बंद पड़े हुए हैं। वहाँ के फंड जो यहाँ के नाजिम है या कोई MK वगैरह वो लोग का देते। ये जो नो गो एरिया ये किसका है? नो गो एरिया किसका है आपको पता नहीं है? इधर अल्ताफ भाई है और तो कोई नहीं है। और पठानों का कौन सा इलाका है जहाँ पे आप लोग खड़े हो? ये सारा। तो यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग नहीं आ सकते, वहाँ पे पठान नहीं जा सकते? ये गलत बात है। मैं आपको कितने दिखाऊँ अभी ज़रा, एक दिन में 10-12 ये सामने दुकानें सारे जो है ना उर्दू स्पीकिंग की है। ये साथ में कमाल है, खिलाफ तो कमाल को कमाल से कमाल है, जमाल इधर बदरू है, सारे यहाँ पे बोर्चे इधर फोटोग्राफर है, सारे उर्दू स्पीकिंग है। आपने किसे वोट दिया था? वोट तो हम देते ही नहीं यार। इस बार देंगे वोट? वो इरादा तो नहीं है। इरादा करे से हुकूमत होगी कौन? किसको नहीं, लेकिन किसी और को। कोई पागल आ जाए, पागल आदमी आ जाए, समझते नहीं ना कैसे समझते हो, ना अयाशियाँ समझते हो, ना दहशतगर्दी समझते हो। उसको देख हाँ उसको देख। ऐसा कोई है बंदा आपको लगता है? आजकल तो अगर देखा जाए तो फिर वो पागल नवाज शरीफ। हाँ नवाज शरीफ है, उसको अगर वोट दिया जाए तो नवाज शरीफ जो है ना वो उसकी हालात को सुधार सकता है। और जो हालात अभी कराची में चल रही साहब उसको कंट्रोल करने वाला अगर है तो नवाज शरीफ कर सकते हैं। इमरान खान बड़े लीडरों में नहीं, इमरान खान तो बच्चा है, उसको बोलो क्रिकेट में उसने जो किया वही किया, सियासत में वो कुछ भी नहीं कर सकता। We headed to Liadi. This is a very dangerous area managed by Nabil Gabol. He claims a big mafia-style crime syndicate here. आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल उसकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे? नहीं, इसमें बेसिकली मसला जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो को पार्टनर पार्टियां हैं, बेसिकली तौर पे आप कराची की राजधानी सरकार के जो वारिस कहते हैं MQM वाले हैं, सही है। MQM बरक हमारे, मैं अपनी लियारी की बात कर रहा हूँ, अगर इस वक्त लियारी के जो हालात हैं उसमें भरपूर नमूने से MQM रहा है। और यहाँ तक कराची की बात है तो कराची के अंदर जो हालात ख़राब है वो लैंड माफिया, बत्ताखोरी और अपनी हक दर्मियों के लिए, जैसे ANP वाले उन्होंने अपने इलाके में अपने जो है मामलात रखे हुए हैं, MQM ने अपने इलाके में रखा हुआ है, उन्होंने अपने मामलात रखे हुए हैं। ये एरिया जो है PPP का है। हाँ बिल्कुल। तो आप खुश हैं उनके निज़ाम से? देखो, जहाँ तक पार्टी बेस की ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी जो है मरकज़ी सतह पर विफाक से लेकर सूबाई तक हमें फंड फराहम करती है। ये अलग बात है कि हमारे नुमाइंदे उन कामों को कहाँ तक रसाई करा सकते हैं। We headed to Liadi to meet Uzair Baloch, the most honorable and feared man in Liadi. Uzair Baloch's political group, the People Aman Committee, is banned by the Pakistani government under anti-terror laws and has a head money of 3 million rupees. Uzair Baloch has positioned himself as a man of the people. The police allege he's responsible for Liadi's drug and gambling den.
टारगेट किलिंग में आप लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट? टारगेट किलिंग तो 1986 से चल रहा है, वो आज तक भी है। और जो टारगेट किलिंग कर रहा है कराची शहर के, पाकिस्तान के लोगों को सबको पता है। वो डोर लंदन से चल के फिर यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जो है कराची जो कहता है हमारा है, तो समझो उसमें तो सारा फसाद की जड़ टारगेट किलिंग वही करवा रहा है कि तमाम कौम बरादरियाँ यहाँ से भाग के कहीं और चले जाएँ, जिसको वन वे मिल जाए सिर्फ कराची उनको मिल जाए। वो आज इस कराची शहर में आए 30 साल हो गए। यहाँ जब पाकिस्तान नहीं बना था उस टाइम पे कराची शहर में यहाँ लोग रह रहे, हिंदू बरादरी रह रहा है, मेमन है, बोरी है, आगा खानी है, शिया बरादरी है, बलोच हैं, कच्ची हैं, मियाँ वाली हैं। ये कराची शहर तमाम पाकिस्तानियों का है। हमने तो हमेशा ये कहा है, मगर वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो कहते हैं कराची हमारा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो सबको मारता फिर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, शहर को बदनाम कर रहे हैं, शहर की मईशत को बदनाम कर रहा है कि लोग यहाँ से भाग जाएं ताकि कराची उसको मिल जाए। मगर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। पाकिस्तान के लोग, कराची शहर के लोग डरने वाले नहीं हैं। और यहाँ जितने भी ज़ोर दबाव जो भी कर लें, इंशाल्लाह वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेंगे जो ये मासूम बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। आप पर हेड मनी 30 लाख क्यों है? ये अवाम की मोहब्बत से मुझ पे इनाम लगा है 30 लाख रुपए इन्होंने, ओके, ताकि अवाम से मैं दूर रहूं, मैं दब जाऊं ये सियासी लोगों के सामने, यहाँ झुका रहूं उनके सामने या घुटने टेक दूं। मैं यहाँ लोगों के लिए सच्चाई की बात नहीं करूं, लोगों के लिए मसले मसाइल के लिए बात नहीं करूं। ये मुझे दबाने के लिए जो है हेड मनी रखा गया है। उसमें अगर ऐसी बात होती अगर मुझ पे या मैं हेड मनी के लायक होता तो मैं समझता हूँ कि मैं फिर इस मुल्क का भी वफादार नहीं होता, ना मैं अपने कौम का होता था, ना मैं अपने शहर का, ना अपने लोगों का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कौम, मेरे शहर के लोग, मेरा मुल्क, हमारे लियारी के, हमारी माएँ बहनें, इस शहर के सब हमारे साथ शाना बशाना है। तो ये जो यहाँ पे गैंग वॉर्स होती हैं क्यों होती हैं? गैंग वॉर तो कराची शहर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1986 से चल रहा है। जो 92 का ऑपरेशन भी उन पे हुआ था, फिर उसके बाद आपस में 2 ग्रुप बने, फिर उसके बाद आपस में कई तंजीमें आपस में लड़ाई झगड़े में वो शुरू हो गए। मगर वो सिर्फ वो गैंग वार लियारी में एक ज़ाती दुश्मनी चल रहा था, वो तो तकरीबन 3 साल चला था। फिर उसके बाद 2008 में राज़ीनामा हो गया, आपस में सारे लोग हो गए। वो कोई दुश्मनी अब है ही नहीं, मगर उसको इशू बनाते हैं मीडिया के सामने। जो कुछ लोग ऐसे हैं मीडिया के अंदर भी जो सच्चाई छुपा के हुकूमत में बैठने वाले या कोई ताकतवर दहशतगर्द के सामने झुक जाते हैं, वो उनके इशू पे बात करते हैं, हर किसी को बदनाम करने के लिए, आगे आने से रोकने के लिए। और ऐसी मामलात कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी पीसफुल इलाका है। आप आज से 8 दिन से लेके आप देख लें, कल 12 बंदे मरे, परसों मरे, उससे पहले भी रोज़ 20 से 25 लोग मर रहे थे। आप कराची शहर के अंदर जब इतनी लाशें गिर रही हैं, आप लियारी टाउन में देखें, पूरा कराची से 0 रेशो पर्सन में है क्राइम में। अगर इसको आप चेक कर रहे हैं, मगर फिर भी उसको सियासी बेस में लियारी को हमेशा बदनाम किया जाता है। तो आप लोगों के पास कोई असला वगैरह कुछ भी नहीं है या है? असला है हमारी हिफाजत के लिए, हम बलोच है, असला हमारा जेवर है। हमारे पास लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। उस ज़माने से वालिद साहब के नाम पे थे, फिर हमने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराए। हमारे पास अभी नए बनवाए, हमने परमिट बनाए, लाइसेंस हमारे पास मौजूद हैं, लाइसेंस वाले असले हैं। लाइसेंस के साथ है? जी बिल्कुल, दिखाएं लाइसेंस। एक का नहीं, बाकी होगा। अच्छा, ये सबके बने हुए हमारे यहाँ लाइसेंस है। जफर का है, मैंने अपने भाइयों का बनाया है, अपने खानदान वालों का। हमारा तो जेवर है असला। एंड बिजनेसमैन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप, कुछ पेड मनी। ये हालत पे इसके ऊपर एड मनी रखा गया है 20 लाख रुपए। ये चल नहीं सकता है। क्यों रखा है? बस हम सच्चाई को छुपाने के लिए वो ये चीजें कर रहे हैं कि हम सच नहीं बोले, हम बुतों की तरह खड़े हो जाएं, बादशाह सलामत वो जो है गुलाम बन जाए। हम उनसे ना रोजगार मांगे, ना हम इलाके के मसले मसाइल के लिए बात करें, ना हम स्कूलों के लिए बात करें, ना हॉस्पिटल के लिए बात करें। वो चाहते ही ये गुलाम रहे। हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम गुलाम मुल्क में पैदा हुए हैं, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। हम अपने हक़ और सच्चाई की बात
मरते दम तक इंशाल्लाह करते रहेंगे। शहर के हालात तो सबको पता है, आपको भी पता है, मीडिया भी को पता है। तो MQM हालत ख़राब करवा रहा है। अब MQM का नाम किसी के ज़ुबान पे भी नहीं आते, सिर्फ इस्लामाबाद के चैनल हैं वो ले आते हैं ज़ुबान पे अपना नाम MQM का। बाकी कराची में जितने भी हैं जो यहाँ कैमरा मैन है, यहाँ अगर कोई उसमें जो है अपना रिपोर्टर वगैरह, वो सारे उनसे डरते हैं और बेचारे बोलेंगे, फिर उन लोगों की लाशें जो है बोरी में मिल जाते हैं। वो बेचारे उनको धमकियां देते, थ्रेट देते हैं। आपका सिस्टर उस स्कूल में पढ़ता है, आपके वालिद वहाँ जाते हैं, आपका भाई उस ऑफिस से, उसको थ्रेट करके खामोश किया जाता है। और वली बाबर को कुल्ला रोड पे मारा गया, उसके टारगेट किलर पकड़े गए, उन्होंने रेंजर्स के सामने इंकशाफ भी किया है, सब कुछ किया है। फिर उसके बाद उसके गवाहों को मारा। ये तमाम चीज़ें तो साफ जाहिर है कि MQM एक दहशतगर्द तंजीम है जिसने कराची शहर में किसी को भी नहीं छोड़ा, ताकि ताजरों को भी नहीं छोड़ा, जिससे ये यहाँ कराची शहर का मईशत बेहतर हो जाए। मगर कराची शहर को बर्बाद करने के उन्होंने ताजरों को भी यरगमाल बनाया हुआ है। हर तरीके से उनको लूटते हैं, किसी मामलात में उनको नहीं छोड़ते हैं। इधर लियारी भी तो सेल्स में से लोगों की लाशें मिली थी। लियारी से नहीं मिली हैं, लियारी से बाहर मिली हैं, कहीं होंगी जहाँ MQM की वहाँ पर जो वो दहशतगर्दी है, जैसा हमारा लियारी में आगरा ताज है, वहाँ उन MQM के वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर MQM का दफ्तर है, सेक्टर है वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ली मार्केट के इर्द ही जो कोना है उस्मानाबाद का, वहाँ पर इनके जो है वहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े टारगेट किलर मौजूद हैं। तायर लंबा है, नईम मुल्ला है, K2 है, फिल्टर है, ये तमाम दहशतगर्द जो है उनके साथ हैं। आप भीमपुरा में ले लो, आप पान मंडी ले लो, तो ये तमाम चीज़ें साफ जाहिर हैं कि जिससे MQM एक दहशतगर्द तंजीम है। और कराची को बदनाम करने के लिए, लियारी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि लियारी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है और हक सच्चाई के लिए कभी पीछे नहीं हटा है और हमेशा सच्चाई का आवाज़ बुलंद किया है। आज ये जो है लियारी को दबाने के लिए, लियारी को बर्बाद करने के लिए यहाँ टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। और MQM के अंदर तमाम जमातें मौजूद हैं, तमाम बरादरियाँ मौजूद हैं, शिया बरादरी भी है, सुन्नी भी हैं, तमाम जमातें उनके अंदर मौजूद है। सबको आपस में लड़वाता है, कभी शिया सुन्नी का फसाद करवाता है, कभी आपस में सुन्नियों को लड़ाता है, कभी कौम बरादरियों को आपस में लड़ाता है। हर वक्त लड़ता रहता है, हर वक्त लड़ के कराची शहर को इन्होंने यरगमाल बना हुआ है। यहाँ के लोग कोप हरासमेंट में हैं। अब अल्लाह करे, कौन सा अजाब अल्लाह करे इनके ऊपर जल्दी ऐसा आ जाए जिससे कराची के लोग सुख का सांस ले सके। ठीक है, मेहरबानी। Zafar Baloch promised us a tour of Liari so we could see for ourselves how people are in awe of Zafar and Ozair. हालात हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? टारगेट किलिंग, इन चीज़ों के बारे में। देखिए जी, कराची इस वक्त जो ना उसको उसका फोकस इंटरनेशनली हुआ है। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें कराची पर है। कराची एक मीडिया सिटी है और इस पर मल्टीकल्चर जितने लोग आबाद हो गए, तकरीबन इसके जी 20 मिलियन इसकी आबादी हो गई है। तो 20 मिलियन की आबादी वाले शहर में 10 से 12 लोग आलमोस्ट जो किलिंग हो रही है, तो कुछ इंतज़ामिया की नाअहली है, कुछ ऐसे मर्डर्स जो सेक्टेरियन है, कुछ ना वो लैंड ग्रैबिंग में है, कुछ ड्रग्स के हवाले से हैं, कुछ दुश्मनियों के हवाले से हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्सअप करके अपनी जो ना वो ड्यूटी से जान छुड़ाने के लिए फुर्द टारगेट किलिंग का नाम देके फाइल क्लोज टू बी कंटिन्यू आगे चले। इस हवाले से उनको वो पिन पॉइंट सही ना होने की वजह से ये सारी चीज़ों की हौसला अफजाई हो रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मिलिटेंट विंग्स बना रखे हैं। कंट्रोल ऑफ द लैंड, कंट्रोल ऑफ द सिटी की जंग हो रही है। उसमें ये टारगेट किलिंग की असल वजह है। जब तक इस शहर को डीवेपनाइज ना किया जाए,
और पॉलिटिकल पार्टीज और जराइम पेशा हों अपने अंदर सफ़ों में, उसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इसमें आप किसी एक को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें मेजर शेयर MQM का है, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी एंड ANP, अदर रिलीजन ग्रुप और बहुत जितने भी हैं, तो सबकी ये स्टेक का झगड़ा है। कंट्रोल ऑफ एरिया, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रोल ऑफ लैंड के लिए तो उसकी सफ़क़त की जंग है। उसमें सारी चीज़ें रोज़ ब रोज़ इसमें हाई पीरियड हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास वेपन कहाँ से आ रहा है? देखिए जी, कराची में या पाकिस्तान में वेपन हासिल करना इतना बड़ा मसला नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि भत्ते के पीछे कौन है? भत्ते के पीछे बड़ी तंजीमों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है। अगर उनके कुछ लोग हैं भी, उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी कि आम जुराइम पेशा अनासिर की है। क्योंकि इब्तिदा में जो रोकथाम नहीं की गई, उससे वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो चोरियाँ करते थे, डकैतियाँ करते थे, लूटमार करते थे, उन्होंने इस पेशे को एक अपने तौर पे एक आइडियल पेशा समझा। क्योंकि फ़ोन करने से पता मिल जाता है, असला शो करने से पता मिल जाता है, पर्ची भेजने से पता मिल जाता है। तो ये कदरे जुराइम पेशा अनासिर समझते हैं, उनके लिए एक सेफ एक जुर्म है और इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कोई अगर हो जाए तो उनके पीछे कोई शहादत देने को तैयार नहीं होता। आप लोगों को कितना भत्ता पे करना पड़ता है? एक असेसमेंट तो ये कि रोज़ाना 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के करीब ये फिगर आता है जो मार्केट उससे कलेक्ट हो जाता है, जिसमें अगवा करके भी ले जाते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी, फिज़िकली रब्ता करके भी। तो लोगों ने एक जहन बना लिया, जब से लोगों के जहन में बात आ गई कि कुछ देंगे तो जान छूटेगी, वरना उनके लिए उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो लोग एक जहन बना लेते हैं। अब भत्ते में नेगोशिएशन का अमल आ गया है, जिसकी वजह से इसका फिगर बढ़ता चला गया है। एरिया में भत्ता लेते हैं कौन? देखिए जी, इस वक्त कराची का कोई ऐसा इलाका कि ऐसी कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब वो बच्चे को फैशन बना दिया गया, एक जराइम को पर्दा करने के लिए दूसरे जराइम को प्लांटेड। आम लोग हैं या कोई पार्टी के मेंबर? देखिए जी, किसी भी पार्टी का किसी की सरपरस्ती ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल किसी की कैपेसिटी तो नहीं हो सकती है कि वो कोई चीज़ क्राइम को ऑर्गेनाइज करे या उसको करे किसी भी क्राइम को। तो उसके लिए उसको वो पैटर्नाइज हो रहा है, पॉलिटिकली उसकी बैकअप है। उस वजह से पॉलिटिकल पार्टी अपना झंडा लगाने के लिए, अपना ज़मीन बड़ा करने के लिए ऐसे लोगों की सरपरस्ती करते हैं जो कल को फिर भत्ता कलेक्शन या टारगेट किलिंग या दूसरे और चीज़ें करती हैं। तो ये इस वजह से हो रही हैं, वो किसी ये ख़ास नहीं, ये पूरे कराची का मसला हो गया है। तो गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही इस बारे? देखिए जी, अब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बढ़ गई है, अब स्ट्रेंथ नहीं है जी। उनकी कैपेसिटी अब पुलिस की या रेंजर्स की, आपने 20 मिलियन की आबादी है, 20 मिलियन की पॉपुलेशन में इसको उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया। अगर वो हाथ डालते हैं तो मिनिस्टर्स का, गवर्नर्स का, किसी का लंदन से, किसी का इस्लामाबाद का फ़ोन आ जाता है, इसको छोड़ दें। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब तक अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब जो इसको पैटर्नाइज करेगा तो वो चीज़ें आप किसी को दबाएंगे, किसी को बचाएंगे तो मामला ख़त्म नहीं होगा, दब जाएगा, वक्त तो ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होने करने के लिए सिंसियरिटी ज़रूरत है। जो पार्टियों का नाम इस्तेमाल करते हैं वो भत्ता लेते हैं, और अब तो क्रिमिनल्स को किसी पार्टी के नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी इतनी मजबूत हो गई है कि पार्टियाँ उनके लिए छोटी हो गई। तो यहाँ पे आप लोग ये पता ही नहीं लगा सके कि भत्ता कौन ले रहा है? पता है, सबको पता है, हमें भी पता है, और हमें जहाँ जहाँ बात करनी है वहाँ बात कर भी रहे हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। पर कोई रिजल्ट नहीं निकला? यस, रिजल्ट नहीं है। इसकी गवर्नमेंट ये भत्ते के बारे में क्यों नहीं कुछ कर? किया जी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और एंटी एक्सटॉर्शन सेल्स भी बनाए हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो
जो यहाँ की लोकल बिजनेस कम्युनिटी है उनसे क्लोज लजान में भी है और उनके ही प्रपोजल्स पर जिन जिन एरियाज़ में उन्होंने कहा है वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी की गई है। हर चीज़ ये जो भत्ता लेते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि ये भत्ता इस वजह से है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। मेरा ख्याल में भत्ता इस वजह से है कि हुकूमत की कोई रिट नहीं है यहाँ पर। यही सबसे बड़ी बात है। और 4.5 साल में जो हुकूमत कायम अपना रिट कायम नहीं कर सके तो उसको मज़ीद हुकूमत करने की जो है ज़रूरत भी नहीं है। In 1996, Imran Khan founded a political party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, which emphasized on anti-corruption policies. It promises to deregulate the economy and create a welfare state, to decrease bureaucracy and to implement anti-corruption laws to create and ensure a clean government. It vows to establish an independent judiciary, to overhaul the country's police system, and to create an anti-militant vision for a democratic Pakistan. What do you have to say about the current situation of Karachi? It's an outcome of the government political parties patronizing militant groups. So because they protect their militant groups sitting in government, it means that the police becomes completely ineffective. And not only ineffective, the police has become politicized, and as a result, there's total chaos. So the moment we allowed one political group to function, it meant that other groups had to pick up arms and in reaction. And so now you have so many militant groups in Karachi, and you see total chaos. So you think it's because of Talibanization? No, this is long before Talibanization. It started in the 80s when MQM picked up arms and then developed a militant group. After that, in response, other parties have now also developed militant groups. And I don't know whether it's Talibanization or whether it's just, as far as I know about, there are 4 armed groups that collect bhatta, which extort money from people. So how do you think your government is going to be different than the current government? Well, for a start, we will depoliticize the police. We will ensure that there is no group that carries weapons. De-weaponize Karachi, but before de-weaponizing, we must have a strong policing system which is completely apolitical. Because the moment the police is politicized, you cannot do anything. And rangers or army is not the answer. A proper police force with proper intelligence and of course backing of the people of Karachi, because people of Karachi are sick of this. Karachi is being destroyed by this militancy. So that's the only way you can tackle it, with a depoliticized police. And what change do you promise to Pakistanis? Well, change is to run Pakistan like it's never been run before. Good governance. And good governance means bureaucracy, police depoliticized on merit, a proper justice system with proper prosecution, investigating agencies depoliticized, a NAB, which is our accountability bureau, it should be independent of the government, and basically fix the governance system. Have a proper local government system which has never existed in Pakistan. And that is the only way you can provide the enabling environment for investment to come into Pakistan. Biggest investment will come from overseas Pakistani. And why should people vote PTI? Because they've seen everyone again and again. All the parties are sitting in power. They've all combined to put Pakistan in this mess. The only party that has not been tried ever is PTI. Okay, thank you so much. Karachi police were never trained for counterterrorism. Majority of the police is non-local, which is something that has caused a loss of love for the city, as perceived by many analysts. Today, militant groups with or without police backing are much stronger than police. Thus, police officers either compromise with them or become part and parcel of the crime. Rangers, on the other hand, were installed in 1989 after student clashes between APMS and PSH. But they were never trained to maintain law and order and counter terrorism. They are not even aware of many city locations.
तरह शो किया जा रहा है, मैं आपको बताऊँ कि इसमें पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो उन्होंने कामयाबी उनको हासिल हुई है। इसकी एक मिसाल ये दूंगा कि जितने टारगेट किलर्स और नोटोरियस जो है टेररिस्ट जो है जितने इस गवर्नमेंट में अरेस्ट हुए इससे पहले कभी नहीं हुए, और पुलिस ने रिएक्शन किया। इसी साल की मैं आपको फिगर बता दूँ कि 128 पुलिस के जो लोग हैं वो इस साल जो है उनको टारगेट करके किलिंग की गई। रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पे सुसाइडल अटैक्स हुए। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसमें मज़ीद बेहतरी ज़रूर है, लेकिन इसमें ये भी फैक्टर है कि जितने लोग हमने गिरफ्तार किए उनमें से काफ़ियों को कोर्ट्स की तरफ से रिलीफ मिल गए। पूरा जिम्मेदारी रेंजर्स और पुलिस को और यकीनन हम हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से वजारत दाखिला को देते हैं और हम यकीनन अपना काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी पेन ले रहे हैं, हम प्रेशर कर रहे हैं, रिजल्ट आए। अगर वो आज भी ये ऐलान करें कि रेंजर्स की ये हदूद मुकर्रर हैं, इसमें अगर कोई जुर्म होगा तो रेंजर्स उसकी ज़िम्मेदार होगी, या जहाँ इनके कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर थानेदार को ये कहा जाए कि अब क्राइम होगा तो थानेदार को उसको रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मेरे ख्याल में सारा क्राइम कंट्रोल हो सकता है। लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बातें की जा रही हैं। Karachi seems ungovernable, unmanageable. The decisions to create and split political, religious, and ethnic groups backed mafias and militants have caused enormous loss to the city. Even the army establishment used Karachi for its own benefits, which includes commercial interests. Mere de-weaponization of Karachi may not be a solution. If Karachi is recognized as a mini Pakistan, it should also be treated as mini Pakistan. Its resources should be spent on its population above all race and caste. Karachi needs a local police system, non-political interference, fast justice, circular railway, and above all, a Karachi mass transit system, a plan that has been pending for almost 40 years.